لندن میں پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے زیر اہتمام شہید بے نظیر بھٹو کی 69ویں سالگرہ کی تقریب عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی، جس میں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور بھٹو لیگیسی فاؤنڈیشن کے چیئرمین بشیر ریاض نے خصوصی شرکت کی۔ پیپلز پارٹی لندن کے عہدیدار اور کارکن بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں بیورو چیف 92 نیوز UK غلام حسین ایوان کی رپورٹ۔ لندن میں شہید بے نظیر بھٹو کی 69ویں سالگرہ کی تقریب، پارٹی کے سینئر عہدیداروں اور کارکنوں کی بھرپور شرکت۔ پروقار تقریب کا اہتمام پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور بھٹو لیگیسی فاؤنڈیشن کے چیئرمین بشیر ریاض کی رہائش گاہ پر کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے شہید بے نظیر بھٹو کی قومی اور جمہوری خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بے نظیر بھٹو شہید عوامی رہنما تھیں، انہوں نے ہمیشہ پاکستانی عوام کی خدمت کی اور پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیا۔ سینئر رہنما بشیر ریاض نے خوبصورت الفاظ میں شہید بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کی عظیم رہنما تھیں، جس گھر میں یہ تقریب ہو رہی ہے یہاں بھی بی بی کی بے شمار یادیں وابستہ ہیں۔ بی بی کی یادیں اس سے وابستہ ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ بہت ساری ان کی تصویریں جو آٹوگرافڈ ہیں، تو اس حساب سے بی بی نہ ہونے کے باوجود یہاں موجود ہے۔ کمرے میں ہر جگہ شہید بے نظیر بھٹو کی یادگار تصاویر موجود تھی، جنہیں دیکھ کر شرکا نے شہید بی بی کے ساتھ جڑی یادوں کو تازہ کیا۔ اس موقع پر شرکا نے شہید بے نظیر بھٹو کے اصالہ ثواب کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ بعد میں شرکا نے شہید بے نظیر بھٹو کی 69ویں سالگرہ کا کیک کاٹ کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر فضا جے بھٹو اور ہیپی برتھ ڈے بی بی کے نعروں سے گونجتی رہی۔ تقریب میں پیپلز پارٹی برطانیہ کے صدر محسن باری، میاں سلیم صدر گریٹر لندن، ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن آغا تنویر اقبال، سینئر رہنما اشرف چغتائی، عارف مغل، اسد نواز، معشوق جتوئی، راجہ افتخار، امانت علی، ڈاکٹر فواد، کاشم مرزا اور کامران جوید اور دیگر شخصیات نے بھی شرکت کی۔ غلام حسین ایوان، بیورو چیف 92 نیوز UK۔ بریڈ فورڈ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام سابق وزیر اعظم پاکستان بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید احوال وقار بابر مغل کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بریڈ فورڈ کے زیر اہتمام سابق وزیر اعظم پاکستان بے نظیر بھٹو شہید کی سالگرہ کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی بریڈ فورڈ کے صدر آصف نسیم راٹھور نے کہا کہ بے نظیر بھٹو کی پاکستان اور جمہوریت کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم کرے ہر کام نے بہت کامیابی اور انہوں نے بیٹے نے ابھی کلے نے انشاءاللہ وہ بھی ان قدم پر چل رہا ہے اور انشاءاللہ وہ بھی بہتر ہوگا، جو کہ دوسری بہتر ہو سی بے نظیر اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دین، اور اللہ تعالیٰ بے نظیر ہمارے دلوں میں بستی اور بے نظیر ہمیشہ ہمارے دل میں رہے گی۔ سابق مشیر آزاد کشمیر سردار عبد الرحمان خان نے کہا کہ سابق وزیر اعظم پاکستان بے نظیر بھٹو نے پاکستان کی بقا کے لیے اپنی جان کی قربانی دی۔ آج پاکستان میں جمہوریت انہی ہی کی مرہون منت ہے۔ سابق میئر آف ہیلی فیکس چودھری ارشد محمود نے کہا کہ بھٹو خاندان کی جمہوریت کے لیے قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ آج بی ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کی یادیں، ان کے کارنامے، ملک پاکستان کے لیے ان کی خدمات، ان کی قربانی، جو سب سے بڑی بات قربانی ان کی جو ہے وہ ہم بتا نہیں سکتے۔ اللہ پاک انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔ جو بھٹو شہید کا مشن تھا، جو شہید بے نظیر بھٹو کا مشن تھا، انشاءاللہ اس کو ہم نے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ تقریب میں پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری عبدالقیوم نے بی بی کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے لیے دعا بھی کی گئی۔ آخر میں بے نظیر بھٹو کی 69ویں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ وقار بابر مغل، 92 نیوز، بریڈ فورڈ۔ مسلم لیگ نون ہالینڈ کے وفد نے چیئرمین طاہر شاہ اقرار کی قیادت میں چیف کوارڈینیٹر برائے انٹرنیشنل افیئرز بیرسٹر امجد ملک سے ان کے روسٹریل آفس میں ملاقات کی، جس میں ملکی سیاسی صورتحال اور تنظیمی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ صدر نون لیگ پرویز سندھیلا، نائب صدر جاوید بٹ، سیکرٹری جنرل فیصل منظور بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مزید تفصیلات راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ راشڈل میں بیرسٹر امجد ملک کے آفس میں ہونے والی ملاقات میں وفد نے باہمی دلچسپی کے معاملات پر گفتگو کی۔ ملکی سیاسی صورتحال اور تنظیمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے بیرسٹر امجد ملک کی انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے نون لیگ کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ اس موقع پر وفد نے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت آنے کے بعد حق کے نمائندگی، سرمایہ کاری اور اوورسیز پاکستانیوں کی شکایت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر بیرسٹر امجد ملک نے وفد کو راشڈل میں خوش آمدید کہا اور بتایا
बताया कि तंजीम नौ के बाद हॉलैंड से सीनियर जूनियर कारकुनों पर मुश्तमिल एक बेहतरीन टीम तश्कील दी गई है। सेनेटर इसहाक डार इस मामले में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं और क़यादत को ओवरसीज के मामलात में भी गहरी दिलचस्पी है। बैरिस्टर अमजद मलिक का कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ओवरसीज पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क पाकिस्तान के सफीर समझते हैं। एंड जूनियर्स ने आगे बढ़कर नॉट ओनली बार दौड़ संभाली है बल्कि अपने सीनियर को बहुत ज्यादा इज्जत दी है और उनकी खिदमात को सराहा है। इसी सिलसिले में आज की ये मीटिंग थी। हमने बहुत सारे यूरोप के मसाइल पे बात की है, सोशल मीडिया जो प्रोपेगेंडा है उसके ऊपर बात की है, हुकूमत की कारकर्दगी और गुज़िश्ता हुकूमत की ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो काम करने वाले थे जो नहीं किए गए उनके ऊपर बात की है और उनके यूरोप के मसाइल के ऊपर भी सीरासल गुफ्तगू हुई है। हम इनको वेलकम करते हैं और संजीला साहब को दावत देते हैं कि वो भी पहुंच गए। इस मौके पर वफद ने क़यादत के वलवले और जोशो खरोश को सराहा और मुल्क की सरबरंदी और जमात की फलाह के लिए मिलकर काम करने का इरादा किया। जो चीजें रह गई हैं, जो चीजें हम नहीं कर सके वो हम करेंगे और जहां तक हमारे सीनियर का तल्लुक है हमेशा इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह ये शफ़क़त से हमारे सर पर हाथ रखते हैं। कोशिश करेंगे कि मलिक साहब के दिए हुए टारगेट पूरे करें और हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक रोल मॉडल बनाए बाकी तमाम ममालिक के लिए कि मुस्लिम लीग नून हॉलैंड कैसे काम कर रही है उसको देखकर दूसरे कंट्रीज भी ऐसे ही काम करेंगे। हमारा वादा भी है और हम पूरी कोशिश करेंगे। हमने इनके साथ मुलाकात की, हमें बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने हमें वेलकम किया और इंशाल्लाह जैसे इनकी हिदायत है उसी पे हम इंशाल्लाह काम करेंगे। शुक्रिया। आज मलिक साहब के साथ मिलकर हमें बहुत खुशी हुई है और इंशाल्लाह मलिक साहब की दी हिदायत पर हम अमल करेंगे। आपसे मिलकर जो है वो बहुत ही खुशी हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला। आपकी जो हिदायत हैं और टिप्स हैं वो इंशाल्लाह हम साथ लेकर आगे चलेंगे और हमेशा की तरह अपने सीनियर्स और जूनियर्स को साथ लेके चलेंगे। सदर और जनरल सेक्रेटरी ने जमात के मामलात पर प्रोग्रेस रिपोर्ट भी पेश की। बैरिस्टर अमजद मलिक ने सदर इंटरनेशनल अफेयर्स की हिदायत भी उन तक पहुंचाई। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। बर्मिंघम के मकामी हॉल में पाक यूके फ्यूजन सोसाइटी की जानिब से शौकत खानम कैंसर अस्पताल की सपोर्ट के लिए हाईटी का एहतमाम किया गया, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की और दिल खोल कर अतियात दिए गए। इस मौके पर शुरका को शौकत खानम अस्पताल के फलाही मंसूबों और दरपेश चैलेंजेस से भी आगाही फराहम की गई। मजीद अहवाल आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। बरतानिया और पाकिस्तान में फलाही काम करने वाली तंजीम पाक यूके फ्यूजन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम शौकत खानम हॉस्पिटल को सपोर्ट करने की गरज से हाई टी रखी गई, जिसमें बर्मिंघम और गिरदोनवाह के इलाकों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में खवातीन ने मुख्तलिफ चटपटे लजीज खानों के स्टॉल्स लगा रखे थे, जिनसे शुरका ने खूब लुत्फ उठाया। इस मौके पर शुरका को कोविड के बाद शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल को पेश आने वाले चैलेंजेस से आगाह किया गया। शुरका ने दिल खोल कर अतियात दिए और कार खैर के लिए भरपूर तावन की यकीन दहानी कराई। पाक यूके फ्यूजन सोसाइटी की चेयरपर्सन रुबीना खान, कैंट मेंबर काउंसलर मरियम खान और दीगर ने 92 न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि दुनिया में कैंसर महंगा तरीन इलाज है और पाकिस्तान में शौकत खानम फ्री इलाज कर रहा है, जिसकी सपोर्ट के लिए आज हमने ये प्रोग्राम रखा ताकि लोगों को कैंसर हॉस्पिटल के फलाही कामों से आगाही भी दी जा सके और मुखैर हजरात की ज्यादा से ज्यादा शमूलियत को यकीनी बनाया जा सके। I know that this organisation has supported the Imran Khan Cancer Appeal on many occasions previously, and this is the first time that they've organised an event like this, giving an opportunity for women from Birmingham, from all areas of Birmingham to come together. मार्च में भी शौकत खानम की फंड रेजर की थी, लेकिन असल में हम लोगों का प्लान ये था कि हम लोग कॉफ़ी मॉर्निंग करेंगे, क्योंकि ये लोग जिस तरह मैकमिलन की कॉफ़ी मॉर्निंग होती है उसी तरह ये लोग स्टार्ट करना चाह रहे थे। तो हम लोगों ने आज ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस है और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पूरे बर्मिंघम से और अतराफ से लोगों को बुलाया हुआ है इन एड ऑफ इमरान खान कैंसर अपील। तो यहाँ पर यह है कि यहाँ पर यूके में हमारे पास NHS है जहाँ पर कैंसर के पेशेंट्स का इलाज मुफ्त होता है, लेकिन पाकिस्तान में कई ऐसे अफराद हैं जो कैंसर के मरीज़ होते हैं और उन्हें ये कैंसर की जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल नहीं होती। यहाँ शौकत खानम की कॉफ़ी मॉर्निंग में आई हुई हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग डोनेट कर रहे हैं। कोविड के बाद जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं पाकिस्तान में, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स आई हैं, तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि हम इनको इमरान खान की इस शौकत खानम को हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो भी यहाँ पे फंड्स जमा हो रहे हैं ये वहाँ पे इलाज के लिए जो है ये यूज़ होंगे। ये हमारा फर्स्ट इवेंट है टू फंड रेज। इंशाल्लाह हम लोग जो है एवरी ईयर कोशिश करेंगे कि इस तरह की कॉफ़ी मॉर्निंग, कॉफ़ी आफ्टरनून जो है हाई टीज़ करते रहें। We all celebrated together and raised some funds for the charity.
and we're hoping that this will help to support people with cancer. आज बड़ा अच्छा लगा देख के लोग हमारे जो बहन भाई हैं वो कैंसर को सपोर्ट करने आए हैं, हमारे मुल्क को सपोर्ट करने आए हैं। शुरका ने तकरीब को सराहते हुए इस अज़म का इजहार किया कि वो आइंदा भी इस तरह के कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहेंगे। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मारूफ समाजी शख्सियत हाजी मोहम्मद असलम 78 बरस की उम्र में चल बसे। मरहूम 70 की दहाई में पाकिस्तान से बरतानिया आए। इलाके में समाजी और दीनी खिदमात के बायस कम्युनिटी में इंतहाई दिल अजीज थे। नमाज जनाजा में कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तदफीन क्रूजेंट के मकामी कब्रिस्तान में की गई है। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। ग्रेव्स एंड डार्टफोर्ड मुस्लिम एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन हाजी मोहम्मद असलम 78 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। इनके इंतकाल पर ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने गहरे रंज और गम का इजहार किया। मरहूम पाकिस्तानी और मुकामी कम्युनिटी में हर दिल अजीज शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे। हाजी मोहम्मद असलम 52 बरस कबल पाकिस्तान से बरतानिया आए और अपनी कारोबारी और समाजी खिदमात का आगाज किया। हाजी मोहम्मद असलम ने अपनी जिंदगी में लंदन से मुल्हिका इलाके कैंट में मसाजिद और इस्लामिक सेंटर्स की बुनियाद रखी। हाजी मोहम्मद असलम ने बरतानिया में परवान चढ़ती हुई नई मुस्लिम नस्ल की दीनी और इस्लामी तालीमात के लिए कैंट के इलाके में खसूसी इंतजामात किए। पाकिस्तान से आए मोतबर उलमा इकराम की मेजबानी करते और उन्हें बरतानिया में मौजूद मुसलमान और बिलखसूस पाकिस्तानी खानदानों से मुतारफ करवाते ताकि बरतानिया में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी अपने मजहब और सकाफत से ताल्लुक बरकरार रख सके। हाजी मोहम्मद असलम ने बच्चों और खवातीन की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए अनथक कोशिशें की और इस बात को यकीनी बनाया कि बरतानिया में इंतकाल कर जाने वाले मुसलमानों को उनके मजहबी अकायद के मुताबिक तदफीन को यकीनी बनाया जाए। हाजी मोहम्मद असलम की वफात पर मुख्तलिफ मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमाए कराम और सियासी शख्सियात ने हाजी मोहम्मद असलम की कम्युनिटी के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दराजात बुलंद फरमाए और हमें भी ऐसे ही लेगेसी पे चलने की तौफीक अता फरमाए। उनके नक्शे कदम पर और उन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर जिन्होंने आकर यूके के अंदर मसाजिद का और तालीमी इदारों का क़याम किया। हाजी मोहम्मद असलम मरहूम जाते जाते हम सब को ये पैगाम दे गए कि जियो तो ऐसे कि हर शख्स एहतराम करे, जियो तो ऐसे कि हर शख्स एहतराम करे, मरो तो ऐसे कि दुश्मन तुम्हें सलाम करे। Haji Muhammad Aslam Saab will be an individual that will always be remembered, an individual that was full of great honor, an individual that made tireless efforts for the community. We pray that may Haji Saab's legacy live on, may his efforts remain functioning through those physical works he done himself and through his children and through his sons, especially our brother Ijaz Aslam Sahib. May Allah subhanahu wa ta'ala grant the whole family patience during these difficult times. Tributes have poured in from across the Kent community as we remember the life and indeed the service of Mr. Aslam. For more than 50 years, Mr. Aslam did a tremendous amount for community cohesion in North Kent and beyond. He was a successful local businessman and a champion of his community. I will greatly miss Uncle G as I knew him. He was someone who was always there for me, someone I could speak to in good times and bad, and he was there always with a few words of encouragement. So from my perspective, from the Kent Equality Cohesion Council, from the wider community, we'd just like to say thank you to Uncle G for all his endless service. हाजी मोहम्मद असलम के दो बेटे शाहिद अब्बास लेबर पार्टी और इजाज असलम कंजर्वेटिव पार्टी से कैंट के इलाके में काउंसलर्स मुंतखब हो चुके हैं। हाजी मोहम्मद असलम की तदफीन ग्रेव्स के मुकामी कब्रिस्तान में की गई। नमाज जनाजा में ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की और मरहूम के वरसा से ताज़ियत की। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, यूके। साबिक वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर और चेयरमैन अलकरम इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पीर अमीनुल हसनात शाह को मैरीलैंड में तालीमी खदमात के एतराफ़ में खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। साबिक वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर और चेयरमैन अलकरम इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पीर अमीन अल हसनात शाह अपने इन दिनों अमरीका के दौरे पर हैं, जहाँ वो कम्युनिटी के मुख्तलिफ तक़रीब में शिरकत के साथ साथ अमरीकी हुकाम से भी मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने कंट्रोलर पीटर फ्रेंचो से भी मुलाकात की, जहाँ उनकी तालीमी खदमात के एतराफ़ में एजाज़ी अवार्ड से भी नवाजा गया। इस मौका पर अमरीकी
रियासत मैरीलैंड के साथ ज़राअत के शोबे में एक्सचेंज प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर मैरीलैंड ने पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की शानदार सियासी, समाजी और माशी खदमात को खराज तहसीन पेश किया है। उनका कहना है कि आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तानी कम्युनिटी अहम हैसियत रखती है। पीर अमीनुल हसनात शाह ने आपको बताते चले कि पीटर फ्रेंचो को दौरे पाकिस्तान की दावत दी है, जिसे कंट्रोलर ने कबूल कर लिया है। जर्मनी के शहर बॉन में जर्मन मीडिया हाउस के ज़ेरे एहतमाम ग्लोबल मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें दुनिया भर से मीडिया के नुमाइंदगान ने शिरकत की और जदीद मीडिया के बदलते रुझानात पर फिक्र अंगेज नशिस्तों में हिस्सा लिया। पाकिस्तान से भी बड़ी तादाद मीडिया के नुमाइंदे शरीक हुए हैं। तफसीलात के लिए देखते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ इमरान महर की रिपोर्ट। जर्मन आलमी नशरियाती अदारे डॉयचे वेले के ज़ेरे एहतमाम 15वें ग्लोबल मीडिया फोरम का इनेकाद हुआ, जिसमें दुनिया भर से DW मीडिया पार्टनर्स, पॉलिसी साज अदारों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के अलावा सहाफ़ी, ब्लॉगर्स, ऑनलाइन एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर्स ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का उन्वान था शेपिंग टुमारो नाउ, यानी हमारे कल की तश्कील नौ आज से। शुरा ने यूक्रेन पर रूसी जारियत, मौसमियाती तब्दीलियों, कोविड-19 वबा और तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत बारे मुख्तलिफ वर्कशॉप्स के जरिए अपनी राय का इजहार किया। इस मौका पर बॉन की सिटी मेयर काटिया जेनर ने खुसूसी तौर पर 92 न्यूज से बात करते हुए कहा, I think that the question how we can support, for example, Pakistan is more on the federal level, and I think that the German government is well prepared, and also the European Union is well prepared to negotiate support and also to support the cities and the countries, especially like Pakistan, who are very hit very hard by the climate crisis. पाकिस्तान से आए मुस्लिम मीडिया ग्रुप्स के नुमाइंदगार ने दिलचस्पी से प्रोग्राम इवेंट्स और वर्कशॉप्स में शिरकत की। यहाँ पे आने का मैं समझती हूँ बहुत बड़ा फायदा ये है कि जर्नलिज्म इज चेंजिंग इन द डिजिटल एज। अब जो है हर चीज़ जो है वो डिजिटल हो रही है, और जो है राइट नाउ द वर्ल्ड इज सीइंग अ वॉर आल्सो बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, तो एवरीथिंग इज अडेप्टिंग टू इट। तो हम लोग जो है यहाँ पर जो है हमें वो वर्कशॉप भी अटेंड करने का मौका मिला है, वो ट्रेनिंग्स भी। जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रहा है, ख़ास तौर पर इन्वायरमेंट्स के लिहाज से, और हम जब यहाँ जर्मनी का देखते हैं तो ये लोग बहुत ज़्यादा ग्रीन एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करें, तो हमें चाहिए कि हम इनके साथ मिल के इनसे कुछ सीखें और हम भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन एनवायरनमेंट पे काम कर सकें। लर्निंग के लिए आए हो, सीखने के लिए बहुत सीखा यहाँ पे, और यहाँ से वापस लेके जा रहा हूँ कि कमिटमेंट, डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी, जो आप अपने काम से अगर आप अपने काम को शौक से करेंगे। This conference, the Global Media Forum in Bonn, gives a chance to discuss very important issues regarding the future of journalism. And what we have experienced here was a very exciting exchange of experts from all over the world. My first time coming to Germany, I was at Berlin about 2 years ago, but for the global conference this is the first time. And it is quite interesting considering that journalists from over 100 countries. दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस में आलमी अफ़क़ पर रूनमा होने वाले हालात और वाक़यात बारे हाज़रीन अहम सवालात के जवाब तलाश करते दिखाई दिए कि बहरानी कैफियत में किस तरह सहाफ़त एक काबिल एतमाद मालूमाती ज़रिए के तौर पर अपना किरदार अदा कर सकता है। साइंसी सहाफ़त मौसमियाती तब्दीलियों पर और वबाई अमराज में अहम मौज़ूआत को किस तरह बेहतर तरीके से निपट सकते हैं, और कौन से कारोबारी मॉडल आज़ाद प्रेस को फ़रोग़ दे सकते हैं। दो रोज़ा डॉयचे वेले ग्लोबल मीडिया फोरम में दुनिया भर से आए मंदबीन ने यूक्रेन जंग, मौसमियाती तब्दीली और उनके साथ साथ सहाफ़ती मैदान में होने वाले जदीद रुझान बारे सैर हासिल गुफ्तगू की, और इसके साथ साथ शुरा का ये भी कहना था कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस के इनकाद से उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इमरान महर, 92 न्यूज़, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस सेंटर बॉन, जर्मनी। मॉस्को में मारूफ पाकिस्तानी शायर और अदीब फैज़ अहमद फैज़ की शायरी के रूसी ज़ुबान में तर्जुमे पर मुश्तमिल किताब की तकरीब रनुमाई हुई, जिसमें सफ़ीर पाकिस्तान शफ़क़त अली खान ने ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब रूस के तारीखी इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ में मुनक्किद हुई, जिसमें फैज़ अहमद फैज़ की शायरी और उनके हालात ज़िंदगी पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई।
शाहिद घुम्मन की ये रिपोर्ट। मारूफ शायर फैज अहमद फैज की शायरी के मास्को में चर्चे। उर्दू से रूसी जुबान में तर्जमा की गई शायरी पर मुश्तमिल खूबसूरत किताब की तकरीब रूनुमाई हुई, जिसमें फैज की शायरी से मोहब्बत करने वाली शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। सफीर पाकिस्तान शफकत अली खान तकरीब के मेहमान खसूसी थे। फैज की शायरी के रूसी तर्जमे पर मुश्तमिल किताब सफारत खाना पाकिस्तान, इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज और खुद जोदो सतनाया पब्लिकेशन के तावन से पेश की गई है। ये अपनी नवियत की रूसी जुबान में फैज की शायरी से एक मुनफरद किताब है, क्योंकि इसको डॉक्टर लिडमिला जो कि उर्दू जुबान में मलका रखती हैं, उन्होंने मुरतब किया है। किताब की तकरीब रूनुमाई से खिताब करते हुए सफीर पाकिस्तान शफकत अली खान ने इसे दोनों ममालिक के दरमियान रवाबत का अहम सतून करार दिया। उन्होंने कहा कि फैज की शायरी रूसी अवाम के दिलों में घिरी हुई है। इस किताब की इशाअत से दोनों ममालिक के अवाम की रवाबत को मजीद तक़वियत मिलेगी। To hold this presentation ceremony of a new book of Russian translations of the poetry of Faiz Ahmad Faiz at the Institute of Oriental Studies, which has a 200 years history of scholarship of the East. Faiz wrote many poems here, and all of them are considered his masterpieces. Undoubtedly, the friendship and empathy that surrounded Faiz in Moscow contributed to his poetic inspiration. Hospitality is one of the common features in the cultures of both our countries. Faiz Ahmad Faiz has become an integral part of the country's cultural and political history and literary heritage. His poetry is part of the daily discourse of all Pakistanis. His poems enjoy wide popularity and admiration across barriers of class, ethnicity, and religion. Faiz's work is characterized by universal themes of humanism, peace, tolerance and solidarity with the oppressed. सफीर पाकिस्तान ने तकरीब में बताया कि उनके फैज के साथ फैमिली रवाबत थे। फैज ही के कहने पर उनकी अहलिया का दरमियानी नाम मदीहा रखा गया था। फैज के लिए मास्को में मोहब्बत और खलूस का अहम जुज पाया जाता है। उन्होंने बताया कि फैज अहमद फैज ने अपने कई मशहूर ज़माना अशार मास्को में लिखे। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान ने फैज अहमद फैज के हालात ज़िंदगी के हवाले से भी आगाह किया। इंस्टीट्यूट के सदर विटले नुमकन ने अपनी फैज अहमद फैज के साथ मुलाकातों का जिक्र किया और इस किताब को पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में फ़रोग़ का एक अहम कदम करार दिया। इस मौके पर डॉक्टर अली अकबर कोब्रोफ ने उर्दू शायरी के मुतल्लिक़ अपने ख्यालात का इजहार किया, जबकि डॉक्टर लिडमिला ने किताब के बारे में अपनी आरा से हाज़रीन को ब्रीफ किया। शाहिद घुम्मन, 92 न्यूज़, मास्को, रूस। कनाडा और इटली में रिकॉर्ड दर्जा हरारत। कैनेडियन सूबे मैनिटोबा में मामूल की सतह पर बुलंद होने वाले दर्जा हरारत ने 134 साल रिकॉर्ड तोड़ डाला है और कारमेन शहर में 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड की दर्जा हरारत ने 111 साल रिकॉर्ड को तोड़ा। जी हाँ, कैनेडियन मेट्रोलॉजिकल सर्विस के मुताबिक विनिपेग में दर्जा हरारत 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कारमेन शहर में 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड में 111 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे कबल कनाडा के सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर टोरंटो में भी रवां साल के शुरू में रिकॉर्ड गर्मी पड़ी थी और दर्जा हरारत 32.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा था। दूसरी जानिब इटली में इस साल बारिश कम होने और दर्जा हरारत बढ़ने से खुशहाली का अलार्म जारी किया गया था। माहिरीन का कहना है कि दर्जा हरारत बढ़ने से पानी की मिकदार में कमी वाक़ई हो सकती है।